Good morning, everyone. So as you know that we are discussing chapter number 12, thermodynamics, in which we have discussed what is the meaning of thermodynamics. Then we have discussed some important terms which will be used here, like what is the meaning of system, what is the surrounding, and then what is the equation of states. After that we have discussed about the thermal equilibrium and then zeroth law of thermodynamics. After that we have discussed about the concept of temperature from the zeroth law of thermodynamics. Then heat, internal energy and work we are discussing. In that, about the internal energy we have discussed. Our next topic is heat and work. What is the difference between heat and work? With respect to the thermal physics, हम यहाँ in case of thermodynamics या thermodynamics के situations में we will differentiate what is the work and what is the heat, and how they can convert from heat, means heat can also be converted into work, and from work we can also generate heat. So what is the basic difference between heat and work? This we want to discuss. As you know that heat is also the form of energy, heat energy आपने पढ़ा होगा. Work is also the energy, but there is some difference between these two. तो क्या difference है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हीट में क्या है. तो हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें. फर्स्ट पॉइंट क्या है? हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी. मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी ट्रांसफर किस वजह से? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन. ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द किसके किसके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम क्या होता है आपने पता लिया. सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब वन इज हॉट अदर इज कोल्ड, तो देन देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी इज नोन एज द हीट. वो एनर्जी आपका हीट होगा. बट इन केस ऑफ वर्क अगर हम बात करें तो क्या होगा? वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ब्रॉट अबाउट द. नाउ यू सी दैट दिस इज क्या है? वर्क इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर. मोड ऑफ ट्रांसफर. मोड ऑफ ट्रांसफर of energy brought down. Mode of transfer of energy. Mode of transfer of energy without any temperature difference. Without any temperature difference. Temperature difference. ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने पिस्टन को प्रेस किया, गैस कंप्रेस हो रही है या तो एक्सपांड हो रही है, देन वर्क विल बी डन ड्यू टू द पिस्टन. ठीक, जैसे कि क्या है? ए पिस्टन ऑफ ए सिलेंडर कंटेनिंग द गैसेस बाय रेजिंग और लोअरिंग द वेट कनेक्टेड टू इट. क्लियर है? तो ये आपका होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड दिस इज विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर. ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस एक और हम पढ़ लेते हैं कि क्या है. when heat is supplied to a gas, क्या होता है?
the molecular motion will increase. थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. तो क्या होता है, हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन. क्या होता है, दिस इज द हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर of energy which creates which produces random motions, that produces random motion between the molecules of the gases. और उसमें क्या होता है, that does not produce this. क्या है, work is a mode of transfer of energy which does not produce any random motion, which that produces random motion produce नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है कि that will produce the organized motion, that produces organized motion. ये दोनों में डिफरेंस है. The thing is that work can be converted into the heat and heat can also be converted into work. The difference is that कि heat में क्या होता है, यह आपका ट्रांसफर तभी होगी if there is a difference between the temperature difference between the system and surrounding. और जो वर्क है that does not involve any temperature difference between the system and surrounding. And the other thing is that कि because of the heat the molecular kinetic energy will increase और क्या होता है, they will start to move in random direction. तो इस वजह से क्या होगा, this will produces a random motions. But in case of work, there is no random motion created, that will produces a organized motion. So this is the some difference between these work and heat. चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल यूज इन द न्यूमेरिकल्स. जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं व्हेन वी डू द थ्योरी, तो हमें साइन कन्वेंशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन कन्वेंशंस मींस की वर्क एंड हीट के लिए. What is the sign convention? Means when we are taking work as a positive or when we are taking about the work is negative. और heat के बारे में कि when we say that heat is the positive or when heat is the negative, that we are going to discuss. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं heat के बारे में. If heat is absorbed by a system, so that heat is taken as a positive. Or if heat given out by a system, then that heat is known as the negative. मतलब क्या हुआ कि हीट को हम, ये हीट का साइन कन्वेंशन है कि इन केस ऑफ हीट जो होगा, if it is absorbed by a system, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर कोई भी सिस्टम हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, देन दैट हीट इज टेकन एज द पॉजिटिव. इफ हीट इज गिवन आउट बाय ए सिस्टम, हीट इज गिवन आउट बाय ए सिस्टम, absorbed by a system, and if it is given by a system, तो इसको क्या बोलेंगे, then this is known as negative. हीट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव हीट. क्लियर, साइन कन्वेंशन. अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द पॉजिटिव, एंड इफ दिस इज गिवन बाय द सिस्टम, देन दैट इज नेगेटिव. और वर्क में क्या होता है, व्हेन वी आर सेइंग द वर्क इज पॉजिटिव, इफ द वर्क done by a system, if work is done by the system, work done
by a system, तो this is taken as positive. अगर कोई सिस्टम वर्क करता है पॉजिटिव, this, and if work is done on the system, work done on a system, work done on a system, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव. क्लियर? तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द हीट एंड वर्क. इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी हम देख लेते हैं. इंटरनल एनर्जी में हम कब कहेंगे कि देयर इज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी एंड व्हेन दिस इज द नेगेटिव इंटरनल एनर्जी. इफ देयर इज ए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो दिस एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव. और इफ देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, decrease in internal energy, decrease in internal energy is taken as negative. Clear? अगर पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी कब हम कहेंगे? इफ देयर इज एनी इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, then we are saying that internal energy is a positive, and if there is a decrease in internal energy, then that is taken as the negative. This is very important sign convention. You should always remember कि हम कब कहेंगे कि heat is the positive, work is positive, and internal energy is positive. If heat is absorbed by a system, positive. If heat is given out by a system, negative. Work cases में work done by a system, positive. Work done on a system, negative. If there is an increase in internal energy, then that will be the positive. If there is a decrease in internal energy, then that will be the negative. इसको याद करने का तरीका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मान लीजिए सिस्टम है, इसको हम ये हटा देते हैं. वर्क एंड हीट के लिए याद करने का सिंपल तरीका है कि सपोज दैट वी हैव ए सिस्टम. ये हमारे पास क्या है? दिस इज ए सिस्टम. ठीक. और ये हमने बना लिया दिस ये हमारे पास हो गया. अब इसको हम कर ले रहे हैं. ठीक. अब ये आपका हीट के लिए हमारा हो गया, ये सिस्टम हो गया, ये हमारा हीट है. ठीक. ये हमारा हीट है. ठीक. ये वर्क डन के लिए है. ठीक. ये वर्क डन हो गया. अब साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा ये चीज. दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. दिस इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है. दिस इज नेगेटिव. क्लियर? तो ये साइड जो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो सिमिलरली इसको हम पॉजिटिव माने, ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव. तो ये वर्क डन बाय ए सिस्टम है ना. कोई अगर सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर ये वर्क किया जाता है किसी सिस्टम पे, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ये देखिए किसी भी सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, ये आपका पॉजिटिव होगा. क्लियर? ये हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये सिस्टम हीट ले रहा है, तो दिस इज द पॉजिटिव. देखिए, इफ हीट इज टेकन बाय द सिस्टम गिवन बाय द, ये आउट दे रहा है. ये क्या है? हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, ये आपका नेगेटिव. तो दिस वे यू कैन आल्सो रिमेंबर बाय यूजिंग द मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन. जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन है, उसको यूज करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव एंड व्हेन heat is considered as a positive or negative. So this is about the sign convention of the work, heat and internal energy.